Welcome to Medgate Today podcast. How this idea came into shape to start a Prius Healthcare for marketing and PR company. Thank you very much, Mr. Afzal, for having me here. Why I started Prius Communications or Prius Healthcare particularly. National agencies, international players and everybody, I used to ask them A and they used to deliver me B. So how healthcare PR is different from conventional PR, corporate PR, and your company is especially into healthcare PR. So how it is different from others? People often misunderstand PR from a reputation building. There's a huge difference between PR and reputation building. So let's say, and what is the difference? The US is behaving towards India and the Trump is behaving towards India. क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन हेल्थ केयर पे? इंडिया के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उस टैलेंट को इंडिया में वापस लाया जा सके और उतने जो शार्प माइंड्स हैं उनको हम इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम के लिए यूटिलाइज कर सकें. आई कैन गिव यू द फ्यू नेम्स. इन सबको अगर आप देखेंगे उन्होंने यहाँ आके वहाँ के लर्निंग के इकोसिस्टम को बड़ा किया. नाउ डेज डिजिटल प्लेटफॉर्म इज योर फर्स्ट फेज. मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में AI ने बहुत स्पेस चेंज किया है. टू द ROI. तो क्या इससे ROI का रिलेशन है ब्रांडिंग में और ROI का दोनों का आपस में कि इससे हमें आउटपुट क्या मिला इन टर्म्स ऑफ मनी रेवेन्यू? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वाई? आप एग्जाम्पल के तौर पे बोलिए कि न्यूज़पेपर में एड्स करते थे आप या आर्टिकल्स करते थे, आप उससे ROI मैप कैसे करते थे? 360 डिग्री एक्टिविटीज से होती है. एग्जाम्पल मैं देता हूँ. In an era where healthcare PR is often driven by visibility, speed, and surface level narratives, only a few communication agencies truly influence the industry for the right reason, while many amplify and conscientious in healthcare storytelling. In this complex and sensitive industry, there is one professional who is consistently worked behind the scene to change the healthcare communication and narratives of the healthcare sector for the better. Mr. Baldev Raj stands apart for his substance, integrity, and quite impact. Please join me to welcoming Mr. Baldev Raj, who is here with me, who will answer the why. Please let us know our audience about how Mr. Baldev has started his company and how this idea came into shape to start a Prius Healthcare for marketing and PR company. Thank you very much, Mr. Afzal, for having me here. Medgate particularly for the voice of the healthcare, not in India only, but across the globe. Because once you are on these kind of platform, you can actually communicate to the people and make their vision in actual responses. Now I'll come to why I started Prius Communications or Prius Healthcare particularly. Right, it was when I was into job and I was heading the healthcare place for my 15 years. And I used to work with every player into the domain. Every national agencies, international players and everybody, I used to ask them A and they used to deliver me B. Actually, they were not actually on the strategically point of view. So let's say if I'll give you example, sometime I used to have a plan for a brand positioning, but they used to deliver me something clinical positioning. But when I asked for, let's say when I was going for a fundraising in 2007-8 with the equity funding, that time I was looking for a brand building exercise into the PE space particularly. Right, but that particular time what they did is they used to deliver me the clinical side of it. Then I realized there's a huge gap understanding healthcare and communicating to the right audience. Then I realized it's a huge understanding gap actually. Nobody else can do the justice to the healthcare players if they are into other domains also. That's where I thought of I should help healthcare players, be it hospital, medtech, equipment, pharma, Ayurvedic specific, or nowadays which is a medtech or AI
app are coming to that matter. Price Healthcare and Price Communications. So in very short span of time, you became the voice of communication industry. So my next question is that I am seeing lot of PR companies are there. So they are also doing PR marketing for the hospitals and its client. So how healthcare PR is different from conventional PR, corporate PR, and your company is especially into healthcare PR. So how it is different from others? I'll tell you, people often misunderstand PR from a reputation building. There's a huge difference between PR and reputation building. So let's say, and what is the difference? So difference is people generally go, let's say senior people also, they try to get their coverages done. Okay, I can have a 10 coverages, 8 coverages out of it. Or let's say I can have this particular thing. But when I say coverage will not solve your purpose. Yeah. Actually, reputation building. Okay. Or let's say for that matter, people say it brand building. But in healthcare, brand building cannot be same which you do it for the Lay's, Pepsi, or furniture brand or for the other. In healthcare, it's very much required is trust factor. Trust has to be there, and when trust talked about in the different segments, so people don't understand that clinical positioning is different, corporate positioning is different, and when you are going for a IPO, it's a different. When you are going for a fundraising, it's a different kind of communication. So people mislead with that actually, and they mix up everything. Okay. And in nowadays, communication and reputation building, it is not only related to traditional media. While traditional media create authenticity, Okay. but digital media or new age media forums create your reach, because the maximum population of our country is on digital platform right now. Yeah. Right? 65% of the population is on the social media. Okay. Right? And good 70% penetration of the internet penetration in India right now is this. Earlier, it used to be lesser in this form. So that time, regular media can do that justice. But nowadays, social media, new age media requires a lot of attention. Okay. Right? And on the other hand, if you see the data and the research, in metros and the other than metros also, 6 hours daily population is spending on social platforms. Okay. If this social media is there, that kind of penetration is there, you cannot be on the other platforms. You have to be on those platforms where the platforms and the audience are there. So that's the big gap. And people don't understand. They try to replica whatever has been done in past years, which cannot be done right now. So in your opinion, what are the biggest communication challenges in healthcare brand they are facing today? So like hospital, medtech companies, pharma, startup. So let's say what kind of challenge they are facing right now. Yeah. How important is the credibility and ethical marketing and storytelling in healthcare PR, and how does Price ensure that they can achieve this? So I'll go to, you can break into a lot of other things, because it's a long question and require a lot of cuts into it. In terms of when you say communication, Yeah. your communication done with not only with the patients, it is done with your internal team members. It done with your industry people. Yeah. It is done with the international people also, because nowadays medical tourism very high. Okay. Indian medical devices are going abroad also. Yeah. Export opportunities are there. So every place you find different audience. Your communication cannot be same with everybody. Okay. Right? In this arena right now, people misunderstand with trust building or credibility. Okay. In healthcare, you can't communicate something wrong. Okay. Right? Or let's say you haven't done anything. A PR agency or a marketing agency or a digital agency, if they communicate that particular activity or that particular substance to the public, and which you are not doing actually, then there is a big challenge.
Okay. तो what PR agency, marketing agencies, or a digital players, they can do it whatever you are doing authentically and ethically. If you communicate that particular thing rightly to the audience, it will create your credibility. Trust and credibility cannot be created in one day. True. It take times. Yeah. But people in nowadays lot of mislead with the, so they go for a कि I want to do it performance marketing, तो they go with कि digital marketing से मुझे lead generate कर दीजिए आप. But lead generation will not solve your purpose. Okay. Trust and the credibility will solve your purpose. If any patient has, or let's say stakeholder has trust in your brand, then they'll come to you. तो एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ आई गिव यू, तो हमने एक ब्रांड के साथ वर्किंग की थी. दे वर आस्किंग कि हम लोगों के लिए आप कार्डियक परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए कैंपेन कर दीजिए. Okay. राइट, एंड वी टोल्ड देम दैट यू आर अ सुपर स्पेशलिटी सेगमेंट पीपल विच यू आर वर्किंग इन टू स्पाइन स्पेस और ऑर्थो स्पेस. Okay. अगर आप कार्डियक के परफॉर्मेंस मार्केटिंग या लीड जनरेट भी कर लेंगे तो वो आपसे कन्विंस नहीं होंगे. दे विल नॉट कम टू यू. व्हाई? बिकॉज आपकी जो रेपुटेशन आज तक है वो स्पाइन और ऑर्थो स्पेस में है. इट इज नॉट इन द कार्डियक स्पेस. Okay. तो आपको एक जर्नी लेनी पड़ेगी जहां आप अपने आप को कार्डियक सेगमेंट में भी स्टैब्लिश करें. राइट, एंड देन पीपल विल कम टू यू. अदरवाइज लीड तो जनरेट होंगी लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगी आपके लिए. Okay. दैट्स द बिग गैप. एंड लॉट ऑफ टाइम इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ या CEOs के साथ या प्रमोटर्स के साथ ये चैलेंज अक्सर आता है व्हेन दे हायर पीपल और एजेंसी, बट लेट्स से उनके पास इंटरनल CRMs नहीं होंगे, उनके पास इंटीग्रेटेड व्हाट्सएप इंटीग्रेशंस नहीं होंगी, उनके पास कॉल सेंटर ढंग से स्टैब्लिश नहीं होगा, उनके पास काउंसलर्स उस लेवल पे ठीक नहीं होंगे. एंड देन दे सेड कि परफॉर्मेंस मार्केटर या एजेंसी या प्लेयर आर नॉट वर्किंग राइटली फॉर अस. दिस लीड इज नॉट कन्वर्टिंग. तो बिजनेस विल नॉट कन्वर्ट, यू विल बी ओनली इनटू स्पेंडिंग स्पेस. सो एक क्वेश्चन मुझसे भी लोग बहुत पूछते हैं, एंड सो मेनी ऑफ आवर क्लाइंट इज आस्किंग एज ए मीडिया, एंड वी आर मेडगेट पब्लिकेशन. So I think your clients will be also asking the same question. Branding is something different, and getting ROI is different. So if someone is advertising with our magazine or coming with your organization for branding purpose, but they are correlating with this to the ROI. तो क्या इससे ROI का रिलेशन है ब्रांडिंग में और ROI का दोनों का आपस में, कि वो अगर देते एक पर्टिकुलर अमाउंट दे स्पेंड फॉर द मीडिया और कम्युनिकेशन, दे वांट ROI कि इससे हमें आउटपुट क्या मिला इन टर्म्स ऑफ मनी रेवेन्यू. एग्जैक्टली. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? तो माई टेक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वाई? तो लेट्स से इन प्रीवियस टाइम हम लोग आउटडोर करते थे, होर्डिंग लगाते थे, या आप एग्जाम्पल के तौर पे बोलिए कि न्यूज़पेपर में एड्स करते थे आप, या आर्टिकल्स करते थे. आप उससे ROI मैप कैसे करते थे? वहाँ तो कोई ROI मैकेनिज्म था नहीं. राइट, इट वाज ओनली विजिबिलिटी. आप रीच और विजिबिलिटी पे बात कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट स्पीक ऑन ROI देयर. ROI सिर्फ एडवर्टीजमेंट देने में या कुछ कवरेज करने में या डिजिटल के कोई कैंपेन करने में या फॉर दैट मैटर कोई ब्रांड फिल्म बनाने में नहीं आती है, जब तक कि उस ब्रांड की अपनी एक रेपुटेशन ना बिल्टअप हो रखी हो. और रेपुटेशन बिल्टअप 360 डिग्री एक्टिविटीज़ से होती है. एग्जाम्पल मैं देता हूँ. आज की डेट में आप और हम, अफजल जी ऑल्सो, अगर हम एक खाना भी ऑर्डर करते हैं, एक फूड भी ऑर्डर करते हैं, तो वी गो टू जोमैटो. हम देखते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ देखते हैं, हम देखते हैं इसके अगेंस्ट में कोई नेगेटिव तो चीज़ें नहीं है. राइट, ये तो हम सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं. व्हेन इट इज़ ऑन दी पब्लिक हेल्थ, और हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता है आदमी बिल्कुल भी. राइट, तो वहाँ पे वो सिर्फ आपके कैंपेन को देख के या एड को देख के नहीं होगा. then they'll check your Google also, they'll check your GMB also, they'll check your doctor's reputation also, they'll check कि डॉक्टर की रेपुटेशन के अगेंस्ट में तो कहीं कुछ नहीं है, हॉस्पिटल का नाम तो कहीं किसी और चीज़ों में नहीं है, then they trust.
the people. तो ROI convert into trust, not advertisement. इस So, segment में you are telling that from campaign we can build a brand. Yes. And in some time it will convert into ROI. ROI भी बिल्कुल कन्वर्ट होता है. तो इनफैक्ट एज आई से कि कोई भी एक्टिविटी is not तो marketing, branding, or for that matter, those kind of activities are not the expense for you. Don't take it as an expense. Take as an investment. कभी भी आप बड़े ब्रांड्स को देखेंगे मल्टीनेशनल, बिकॉज आई वर्क विद मल्टीनेशनल ब्रांड्स ऑल्सो who are coming to India now, right? I am working with the top of the hospitals, med tech, pharma, जिनका व्यू पॉइंट बिल्कुल क्लियर है माइंडसेट में कि वी वांट टू बिल्ड ब्रांड फर्स्ट Yeah. एंड कम्युनिकेट टू द ऑडियंस राइटली. वो उनका ROI भी रिटर्न में आता है. लेकिन अगर मैं हर एक पेनी से ROI को मैप करने लगूंगा तो इट विल नॉट कम. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, हॉस्पिटल्स बहुत पहले कैंप्स करते थे. Okay. कैंप्स में 100 लोग अटेंड करते थे, लेकिन 100 के 100 लोग आपसे सर्जरी नहीं करा लेते हैं, राइट? उनमें से कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोग उसमें से OPD में आते हैं, और कुछ लोगों के पास जब कभी वो माइंड में सेट हो जाता है, जब कभी उस रिलेटेड इश्यू उनके सामने आता है, तब वो पर्टिकुलर टाइम पे आपको अप्रोच करते हैं, राइट? दैट्स हाउ ROI हैव बीन कैलकुलेटेड. लेकिन अगर आप ROI एग्जैक्टली पिन टू पिन कैलकुलेट करेंगे तो कभी इससे ट्रैक नहीं हो सकती है. As you are the brand strategist and expert in this domain, so if some client is coming to you and any healthcare brand approaches you, what is the first strategic question you ask before designing any PR campaign to the client? एग्जैक्टली. तो नॉट ओनली PR कैंपेन या कोई और पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो हम दैट्स व्हाट वी से, वी आर नॉट अ डिजिटल कंपनी, वी आर नॉट अ PR कंपनी, वी आर नॉट अ एडवर्टाइजिंग कंपनी, वी आर स्ट्रैटेजिकल कम्युनिकेशन फर्म. Okay. एंड व्हाट दैट मीन्स इज वी गो बाय ऑब्जेक्टिव. तो लेट्स से इस साल का आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है फंड रेजिंग, इस साल का ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका लॉन्चेस, इस साल का ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है IPO जाना, या इस साल का ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है. अगर आपको राइट ऑब्जेक्टिव नहीं पता है तो आपका ROI भी कन्वर्ट नहीं होगा. तो फर्स्ट व्हाट वी डू, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है और उनका पेन स्टेटमेंट क्या है या पेन प्रॉब्लम क्या है उनका एग्जैक्टली. अगर आप उससे राइटली एड्रेस करते हैं, पहले आप उसे अंडरस्टैंड कीजिए एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. अगर मैं एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करूंगा स्ट्रैटेजी को तो कभी वर्क नहीं करती. एग्जाम्पल, इंडिया में तो इंडिया अपने आप में इतना बड़ा कॉन्टिनेंट जैसा एक्ट करता है कि जो बिहेवियर कस्टमर का या पेशेंट का नॉर्थ में है वो साउथ में नहीं है. इनफैक्ट नॉर्थ में भी जो पंजाब में है वो दिल्ली में नहीं है, जो दिल्ली में है वो यूपी में नहीं है. इनफैक्ट यूपी में भी वेस्टर्न यूपी एक्ट डिफरेंटली, ईस्टर्न यूपी एक्ट डिफरेंटली, है ना, और नॉर्थ ईस्ट एक्ट डिफरेंटली. तो एक सेम स्ट्रैटेजी तो कभी वर्क कर ही नहीं सकती. तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि पेन स्टेटमेंट क्या है, ऑडियंस अंडरस्टैंड करनी है, ऑडियंस कैसे बिहेव कर रही है वो अंडरस्टैंड करना है, कौन सा टूल एक्टिव है. एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली NCR और मेट्रोज में इंस्टाग्राम वर्क्स फास्टर, बट अगर हम इंटीरियर साइड पे जाएंगे तो फेसबुक्स आर मोर एक्टिव. अगर मैं कुछ और टेरिटरीज में जाऊंगा तो वहाँ यूट्यूब एक्ट मोर फास्टर, राइट. कुछ टेरिटरीज में आज भी न्यूज़पेपर की ऑथेंटिसिटी या TV की ऑथेंटिसिटी बहुत हाई है, राइट. तो दैट मैटर्स. तो इट कैन नॉट बी सेम, इट हैज़ टू बी टेलर मेड फॉर एवरीबॉडी. So my another question is like कि एक कंपनी है तो एस्टेब्लिश ब्रांड है कोई, या किसी ने जस्ट स्टार्ट किया, कोई स्टार्टअप है, तो किसको एडवर्टाइज करना चाहिए या अपना ब्रांड प्रमोट करना चाहिए थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन, किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? तो आज की डेट में बी इट न्यू प्लेयर, बी इट एस्टैब्लिश प्लेयर, बी इट अ इंडिविजुअल डॉक्टर, हर इंसान को अपने ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज पे स्पेंड करना ही चाहिए. ये डिपेंड करता है अगेन कि मेरा इस साल का ऑब्जेक्टिव क्या है. फॉर एन एग्जांपल, मैं अभी लार्ज चेन्स के साथ काम कर रहा हूँ तो उनके टारगेट्स फॉर दैट मैटर
हो सकते हैं कि 5,000 करोड़ के हैं, कि उनके टारगेट्स होंगे 5,000 करोड़ के, तो उनकी वर्किंग एंड स्पेंडिंग्स डिफरेंट होंगी। लेकिन एक प्लेयर है जो कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में काम कर रहा है, तो उनके टारगेट्स डिफरेंट होंगे और उनकी मैपिंग भी ऑडियंस की डिफरेंट होगी। तो करनी तो सबको होती है, बट पॉइंट इज कितनी स्पेंडिंग है। व्हेन इट कम्स, आज की डेट में जो मैंने देखा है, बहुत सारे हेल्थ केयर प्लेयर्स, हॉस्पिटल्स, जिस दिन लॉन्च होता है उससे सिर्फ एक हफ्ते पहले एक्टिव होते हैं। ओके। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो आज की डेट में सिनेरियोज हैं, वो सिनेरियो कम से कम 6 से 8 महीने पहले स्टार्ट होने चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड प्री लॉन्च फेज। ओके। प्री लॉन्च फेज में आप अपनी स्टोरी कनेक्टिविटी उनके साथ शेयर कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी नया इक्विपमेंट लैंड हुआ है आज, ओके। कौन सा इक्विपमेंट लैंड हुआ है, तो यू कनेक्ट विद द पीपल। आपकी स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए कि आप ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल, हेल्थ केयर या मेडिकल डिवाइस ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। जो नया एरा है, दैट इज मोर अबाउट स्टोरी टेलिंग, इट इज़ नॉट अबाउट एडवर्टाइजिंग। हमारी ऑडियंस स्टोरी टेलिंग से कनेक्ट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे सेम, अभी हम लोग बहुत सारे प्लेयर्स के साथ काम करते हैं और गोइंग फॉर IPOs, राइट। IPO में भी अगेन दे डू वेरी बिग मिस्टेक कि वो सिर्फ 3 महीने पहले से या 4 महीने पहले से, 6 महीने पहले से करते हैं, जबकि एक्चुअल IPO की स्ट्रैटेजी स्टार्ट फ्रॉम बिफोर गुड 2 years। ओके। 2 साल पहले से वर्किंग उसकी स्टार्ट होती है और हर 6-6 महीने पे वो फेजेस चेंज होते हैं, राइट। बट वो हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, एंड वी ट्राई टू डू इट एवरीथिंग इन क्वार्टर, जो कि आपके ब्रांड को किल करेगी, या आपकी कनेक्टिविटी राइटली नहीं होगी, या आपकी जो आपको पेशेंट एक्वायर करना है वो ठीक से नहीं होगा, ROI ठीक से नहीं आएंगे आप। बट आजकल के जो कुछ क्लाइंट्स हैं वो बोलते हैं यार हमें ब्रांड वैल्यू की, वी आर द एस्टेब्लिश्ड प्लेयर, और तो उनका ये कहना होता है। और जो लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप, तो बोलते हैं वी आर स्टार्टअप, वी डोंट हैव एनफ फंड फॉर दिस। एग्जैक्टली। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, तो मैं उन प्लेयर्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो ऑल्दो ऑन दिस प्लेटफॉर्म मुझे नाम नहीं लेने चाहिए, बट पॉइंट इज कि मैं ये बता सकता हूँ कि टॉप 5 हॉस्पिटल ऑफ द इंडिया में से मैं शायद 3-4 के साथ काम कर रहा हूँ, ओके, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट इन द सेम मेडिकल डिवाइसेस स्पेस एंड द अदर, जब इतने एस्टैब्लिश प्लेयर को भी आज रिक्वायरमेंट है अपने ब्रांड को रिकॉल करने की। आपने देखा होगा कई बार कि बहुत बड़े ब्रांड अपना लोगो ट्रांसफॉर्म करते हैं या चेंज करते हैं आफ्टर 10 years और समथिंग। उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है? इट इज़ नॉट अबाउट, इंडस्ट्री अपने आप को हर 10 साल में चेंज करती है एक्चुअली, और वो नए अडेप्शन लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे, आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, 15 साल पहले, बट आज जो स्पेस है वो सेम तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आज का जो फेस है, मैंने बहुत अपने आर्टिकल्स, इंटरव्यूज़ में कम्युनिकेट किया है कि 2023 से पहले का वर्ल्ड और उसके बाद का वर्ल्ड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लाइक AI इज़ एक्टिंग वेरी एक्टिवली राइट नाउ। AI जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस तरीके से ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, उनका बिहेवियर चेंज कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप और हम भी पहले सर्च करते थे, तो हम सर्च करते थे गूगल पे जाके, कि गूगल पे हमने सर्च किया, फिर हम वेबसाइट पे गए एंड देन यूज्ड टू। नाउ द AI थिंग्स आर कमिंग। अब आपको AI प्रॉपरली चीज़ निकाल के दे रहा है। तो अगर मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है, मेरी ऑडियंस का बिहेवियर चेंज हो गया, तो मेरी मार्केटिंग स्टाइल, मेरा PR स्टाइल, मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल भी चेंज होना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज उस लीग में मैं पीछे रह जाऊंगा। एक फेमस सेइंग भी है, जो दिखता है वही बिकता है। सो वी शुड बी, आजकल ये सेइंग थोड़ी सी और चेंज हो जाती है। व्हेन यू से कि जो दिखता है वो बिकता है, नहीं है खाली, जिसकी स्टोरी कनेक्टिविटी हाई है आज की ऑडियंस में, वो उससे रिलेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, लोग बहुत ही हाई वर्जन ऑफ एडिटेड दिस दैट नहीं देखना चाह रहे हैं। अगर आप ऑडियंस या अपनी भी टीम से कभी पूछेंगे हु इज़ यंगर इनटू दैट स्पेस, जो यूज़ कर रहे हैं वो रॉ चीज़ देखना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रगल क्या थी, आपने क्या चीज़ें फेसेस की है, आपके चैलेंजेस क्या थे, सो दैट दे कैन लर्न आउट ऑफ इट। लर्न करेंगे देन ओनली दे कैन टेक इट फॉरवर्ड। So nowadays, as you said, the era of digital learning, machine learning, AI. So how media and digital thought leadership, with the rise of digital platform, podcast and LinkedIn through leadership, how has healthcare PR evolved in the last 5 years? तो in last 5 years, जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे ना, we have discussed that
that customer behaviors is changed now. Yeah. They don't look at too many newspapers. In fact, if I ask you कि आप जब चलते हैं और जब ड्राइवर गाड़ी ड्राइव भी कर रहा होता है तो आप कितनी देर गाड़ी के बाहर देख पा रहे होते हैं, True. या कितनी देर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होता है, या कितनी देर आपने पर्टिकुलरली कुछ और चीज़, यू आर ऑलवेज इनटू फोन. To phone. और एंड फोन में भी यू आर सर्चिंग समथिंग, यू आर डूइंग सम रिसर्च, आप किसी का पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्योंकि नाउ वर्ल्ड इज इन दी हैंड, Yeah. आपके हाथ में है, आप उसको कंटिन्यूसली देख रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं. तो जो PR और कम्युनिकेशन है वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है. True. एंड दी अनदर पॉइंट इज पीपल सेड कि हम सिर्फ कवरेज पे जाते हैं, बट आई सेड थॉट लीडरशिप इंपॉर्टेंट है आपके लिए. किस तरह की आपको थॉट लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल आर लुकिंग इन योर इंडस्ट्री, इन दी स्पेस, एंड इनफैक्ट यू नीड टू सेव योर ऑडियंस. एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे मेडटेक डिवाइसेस टॉक अबाउट देयर USPs कि ओके इस USP से या इस डिवाइस से ये सॉर्ट आउट होगा. नो, दे वांट टू बी सेव्ड एज एन प्रिवेंटिव साइड, Okay. कि ये हो ही ना. उनको एजुकेशन मीडियम हाई हुआ है अभी. तो अगर आपका एजुकेशन हाई है, और ऑल्दो आई ऑलवेज प्रे कि किसी को हॉस्पिटल्स या डायग्नोस्टिक्स की ज़रूरत ना पड़े, बट जब भी कभी पड़ेगी तो उनके दिमाग में वो स्टेटमेंट, वो कम्युनिकेशन रहता है, और वो दे फील लाइक कि ये मेरे लिए केयर कर रहे हैं. दे आर नॉट ट्रीटिंग मी एज एन क्लाइंट और अ कस्टमर. Yeah. पेशेंट कैन नॉट बी क्लाइंट और अ कस्टमर, True. क्योंकि ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है वहाँ पे, राइट. तो यू नीड टू कम्युनिकेट सो दैट इट कैन बी सेव देयर लाइफ, इट कैन सेव देयर लाइफ. अदरवाइज वो आपको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट अगर आप उन्हें करेंगे तो वो ठीक नहीं है. So thank you for giving your insights about the branding strategies and different things. So before we close, I would like to ask one important question. And we are sitting in the starting of 2026. So how you are seeing 2026 for healthcare professionals or healthcare industry? दैट्स अ वेरी ब्रॉडर क्वेश्चन अफजल जी. मैं इसको क्विकली कोशिश करूँगा कि 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ. हेल्थ केयर इन 2026 कई पैरामीटर्स पर डिफरेंट हो सकता है. एग्जाम्पल, तो मैं आपको पहले कुछ पैरामीटर्स ऐसे बताता हूँ कि एक पैरामीटर्स है हाउ ग्रोथ इज़ कमिंग इन टू हेल्थ केयर. द सेकेंड पैरामीटर्स इज कि जो लीडर्स हैं, जो VPs हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, हाउ दे शुड एक्ट इन टू इट. द थर्ड इज लेट्स से कि किस टाइप के IPOs, न्यू इन्वेस्टमेंट्स इस सेगमेंट्स में आ रही हैं. द फोर्थ इज करंटली द US इज बिहेविंग टूवर्ड्स इंडिया एंड द ट्रम्प इज बिहेविंग टूवर्ड्स इंडिया. क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन हेल्थ केयर पे? Very important. राइट. तो इफ आई ब्रेक इनटू, तो आई विल फर्स्ट गो टू ग्रोथ साइड ऑफ इट. Yeah. इंडियन हेल्थ केयर की ग्रोथ 2025 में तकरीबन 11 IPOs इंडियन मार्केट में आए हैं, राइट. एंड 11 IPOs एंड मोर आर इनटू इट. मतलब इट्स अ बिग नंबर. अप्रॉक्सीमेट 12,000 करोड़ प्लस के IPOs हेल्थ केयर में जनरेट हुए हैं, Okay. which is expected to be very high in 2026, which means कि ये मार्केट इतने हाईली तरीके से ग्रो हो रहा है कि उस स्पेस में रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, हेल्थ केयर के कम्युनिकेटर्स की. तो इट इज़ देयर. सिमिलरली पी फंडिंग लास्ट ईयर में जितना 5 सालों में हुआ था उतना लास्ट ईयर अलोन में हुआ है, राइट. तो इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट्स. वो इन्वेस्टमेंट होने से हमारे प्लेयर्स Tier 2 सिटीज़ में, Tier 3 सिटीज़ में बहुत हाईली एक्टिव हो गए हैं. हमारा Tier 2, Tier 3 मार्केट बहुत बड़े लेवल पे मूव कर रहा है. अब के जो बड़े प्लेयर्स आएंगे वो सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर से नहीं आने वाले हैं. दे विल बी मे बी कमिंग फ्रॉम रांची, दे विल बी कमिंग फ्रॉम दी गोरखपुर. आई एम वर्किंग विद वेरी प्लेयर्स इन टू रीजनल स्पेसेस. देर इज़ अ प्लेयर जो कि कर्नाटका में एक ही सिटी में 9 हॉस्पिटल्स के साथ एक्ट कर रहे हैं. देर आर प्लेयर्स जो कि UP स्पेसिफिक ही काम कर रहे हैं. देर आर प्लेयर्स जो कि MP स्पेसिफिक ही काम कर रहे हैं. तो मतलब अब उन टेरिटरीज में भी मार्केट बहुत ओपन हो गई है. एंड ऑन दी अदर हैंड
गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग लॉट ऑफ वे. तो लेट्स से यूपी की नई पॉलिसी आई है जिसमें दे आर सपोर्टिंग कि आपको जीएसटी में सब्सिडीज हैं, देर आर इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडीज है, लैंड सब्सिडीज हैं, बहुत सारी पॉलिसीज में उन्होंने दिया है. तो वो इन्हांस करेगा हेल्थ केयर को इस साल में. अब पॉइंट आता है कि हेल्थ केयर की इन्हांसमेंट, तो ये एक पॉइंट हो गया. द सेकेंड पॉइंट कैन बी कि मार्केटर्स और प्रमोटर्स इसको कैसे एक्ट करें और क्या देखें. तो वो देखने का पॉइंट ये है कि अगर हेल्थ केयर के जो प्रमोटर्स हैं वो अपने साइलोज में नहीं जीने चाहिए. जो प्रमोटर्स हैं उनको अपने वीपीज को अपने सेकेंड लेवल पे ये नहीं देखना चाहिए कि आई एम सिटिंग इन माई कैबिन एंड एक्टिंग जस्ट लाइक दैट, राइट. तो उनको अपनी मार्केटिंग टीम से, अपने वीपी से, इनफैक्ट अपने पार्टनर्स लाइक अस एंड वर्किंग दी अदर वर्टिकल्स, उनसे एटलीस्ट मंथ में एक बार रूबरू होना चाहिए सो दैट दे कैन हैव अ लॉट ऑफ मार्केट डायनेमिक्स. बहुत बार मैं आपको बताऊंगा कि प्रमोटर तक वो डिस्कशंस जाते ही नहीं है. सेकेंड लाइन मे बी दे समटाइम, बिकॉज आई हैव रियलाइज दैट कि समटाइम वो इनसिक्योर फील करते हैं, समटाइम उन्हें लगता है दे आर बिजी इन देयर ओन स्पेसेस, वो उस टाइप की रिसर्च ही नहीं कर पाते हैं, उनको वो अपडेट्स ही नहीं होते हैं. वो सब अपडेट्स के लिए प्रमोटर के एंड पे आई फील कि उन्हें रूबरू होना चाहिए विद द न्यू थिंग्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या मार्केट की पल्स है, किस तरफ मूवमेंट हो रही है और किस तरह की रिसर्चेस आउट ऑफ द वे आ रही हैं. एक और पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट फार्मा स्पेसेस एंड ट्रम्प का इम्पैक्ट क्या होगा. तो ट्रम्प इज राइट नाउ एक्टिंग, और जो मुझे दिखता है बहुत मेजर हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट जो पी की हैं वो मोर देन 50-55% इज फ्रॉम द यूएस पीई फर्म्स. ओके. उसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर इस टाइप का एक्शन चलता है. तो वो पीई फर्म्स जो अब तक आपको स्पेस दे रहे थे कि आप इजीली अपने क्लाइंट को एक्वायर कीजिए, पहले ब्रांड बिल्डिंग कीजिए एंड ऑल दैट, मे बी अ टाइम कैन कम जब इसी टाइप की अगर कंटिन्यूटी हुई तो वो लोग अपने फंड्स को एग्जिट पे जल्दी करने की कोशिश करेंगे. वो बोलेंगे वहाँ पर कि पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जल्दी से जल्दी हमें प्रॉफिट मेकिंग कीजिए. उसका असर होगा कि प्लेयर्स को आईपीओ के लिए तेज जाना पड़ेगा, राइट. देन ओनली दे विल गेट द एग्जिट्स, राइट. उस आईपीओ सेगमेंट में भी नैरेटिव शिफ्ट हो जाएंगे आपके. नैरेटिव शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम लेट्स से जो कि अभी तक हम क्लिनिकल एंड पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे थे, अब मोर टूवर्ड्स दी फंड रेजिंग, आईपीओ, थॉट लीडरशिप और अ ब्रांड बिल्डिंग इन अ बिगर स्पेस. वो चेंज होगा. फार्मा के लिए अभी तक हम जेनरिक मेडिसिन टाइप वर्किंग पे हम जाने जाते थे इंडिया एज एन, बिकॉज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर साइड इज, हम जहाँ एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएस है, राइट. हमारा सबसे बड़ा मार्केट हुआ है. उस पर्टिकुलर मार्केट में फॉर अ फार्मा इट विल बी कि हम जेनरिक मेडिसिन जैसे टैग्ड ना हो. हम एक्चुअली वैल्यू और हम ये देखे जाएं कि एग्जैक्टली बहुत मतलब वैल्यू वाइज कह लीजिए आप, या आप कह लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे क्वालिटी वाइज हम लोग बहुत सुपीरियर हों स्पेस में, वैसे नैरेटिव्स मूव करने चाहिए रादर देन हम दिखें कि नहीं हम जेनरिक लो कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, राइट. अनदर एंगल इज मेडिकल टूरिज्म टू अ वेरी बिग एंगल टू इट. मेडिकल टूरिज्म सेगमेंट में भी एक पॉइंट जो मूव कर रहा है वो ये है कि इंडिया कैन बिकम अ very good into it because of Trump and these people are doing this particular activity. बहुत सारा मैन पावर यूएस से शिफ्ट होगा टूवर्ड द अदर प्लेसेस, मे बी यूरोप, मे बी चाइना, मे बी दी अदर प्लेसेस. इंडिया के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उस टैलेंट को इंडिया में वापस लाया जा सके और उतने जो शार्प माइंड्स हैं उनको हम इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम के लिए यूटिलाइज कर सकें. आई कैन गिव यू द फ्यू नेम्स जो बाहर से अब्रॉड उनकी लर्निंग और क्लिनिकल साइड थी, बी इट डॉक्टर त्रेहन, बी इट डॉक्टर शेट्टी, बी इट डॉक्टर पाटिल, है ना. इन सबको अगर आप देखेंगे उन्होंने यहाँ आके वहाँ की लर्निंग के इकोसिस्टम को बड़ा किया. तो दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस ऑल्सो कि वो यहाँ पे आके उसको बिल्टअप कर सकें. एंड ऑफकोर्स अफ्रीका, मिडल ईस्ट और ऑल दीज प्लेसेस में इंडियन प्लेयर्स आर मूविंग फास्टर, तो वहाँ की ऑडियंस वैसे भी यहाँ पे ड्राइव हो रही है. तो वी कैन बी अ वेरी बिग प्लेयर इन दिस स्पेस. True, well said. Yeah.
So, Mr. Raj, you are into media domain for very long time, and you have very good association with all the media. And since you are working in healthcare domain, and Medgate today is also working for the healthcare professionals. So, what role does media partnership and editorial platform like Medgate today play in building long-term brand authority? So it's a very, I would say, in a thought leadership, Medgate is known for long now, Okay. right? People understand, people know that Medgate is the platform where the industry leaders are speaking. And if they are speaking, it means it has to be taken seriously. उनकी बात की वैल्यू है. तो जो एडिटोरियल स्पेसेस हैं इस टाइप के, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं उस वॉइस को रखने के लिए एंड टू लर्निंग टू द न्यू प्लेयर्स. तो मान लो स्टैब्लिश प्लेयर्स अपनी जो केस स्टडीज़, अपने जो मैकेनिज्म, अपनी जो लर्निंग्स दे रहे हैं थ्रू मेडगेट टू द पब्लिक, वो नए प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एज एन मेडगेट, बिकॉज मेडगेट की टीवी भी है, मेडगेट का पॉडकास्ट भी है, मैगजीन भी है, एंड यू आर ग्लोबली वर्किंग, राइट? तो दिस इज गिविंग अ वॉइस टू देम एज वेल, बिकॉज इंटरनेशनली भी उन्हें वॉइस मिल रही है उस पर, नॉट ओनली इन इंडिया. It's a very big platform. So, what is your advice for the industry startups or marketers they should do in 2026? So in 2026 कुछ की एलिमेंट्स हैं जो कि I'll break into मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में यू शुड नॉट टेक PR as in the stand alone exercise. You should focus on the reputation building. That's the first key of it. The second is, I would say, आपकी टीम में you should have somebody who can do a storytelling. It's a very essential requirement right now. The kind of space is moving. तो in fact I can suggest, जैसे CEOs हैं, CMOs हैं, इस तरीके से अब आपको एक चीफ स्टोरी टेलिंग ऑफिसर भी होना चाहिए आपके पास में, विच इज़ एसेंशियल एक्चुअली. एंड थर्ड, यू कैन से कि मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो, आपको कई बार लगता है कि आपका पेशेंट आपकी OPD से कन्वर्ट हो रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. नाउ डेज डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ योर फर्स्ट फेज. वो आपके पास आने से पहले ही वो आपको 10 जगह चेक कर चुका है. तो यू शुड ट्रीट which is your digital platform is the first phase to the public. The another is crisis. आपकी crisis किसी भी brand को आज की डेट में within 5 minutes it can spoil, right? Because in the era of the social media, so your team should be well prepared and your SOPs has to be there for digital front as well when the crisis happen. Okay. Right? These are the key elements. So we are going to for the marketers. Yeah. For now. So what is your advice to young marketers or young communication professionals who are just entering to this business or his career? So I would say कि first I want to say them कि they should rest assured कि healthcare communication एक बहुत बड़ा market है, right? If I would say, तो आज की डेट में आप देखिए हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल्स, मेडटेक, आयुर्वेदा स्पेस इतना बड़ा हो गया है, योग अनदर स्पेस. अभी मैं एक ब्रांड के साथ हम लोग कर रहे हैं विच इज जेरेटिक केयर. एल्डरली केयर भी बहुत बड़े प्लेयर्स गेटिंग इनटू दैट स्पेस. दिस इज द नीड ऑफ द आवर. यस, इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स द एल्डरली. एग्जैक्टली. तो वो जो एल्डरली पॉपुलेशन का है, इनफैक्ट आप देखेंगे तो नॉर्थ वर्सेस साउथ में भी एक बहुत बड़ा गैप है. तो अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द पॉपुलेशन in north is geriatric population, approximate, whereas if you go to south side it's approximately 14%. तो वहाँ की नीड और जल्दी आ रही है उस सेगमेंट में. तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्पेस है. नाउ एवरी डॉक्टर वॉन्ट्स टू हैव समथिंग फॉर देम, बिकॉज अगर वो डॉक्टर अपने लिए ब्रांड स्टैब्लिशमेंट या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो वो स्पेस फिल नहीं हो पाएगा. तो एवरी डॉक्टर इज नीडेड कि उसे भी एक बैक सपोर्ट टीम चाहिए. True. तो ये बड़ा स्पेस है जहाँ पे होना चाहिए. अब हाउ यू शुड हैंडल इट, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में AI ने बहुत स्पेस चेंज किया है.
तो जो मार्केटर है उसको ओरिजिनल थिंकिंग, स्टोरी टेलिंग, कनेक्टिविटी हाई अंडरस्टैंड होनी चाहिए. अदरवाइज कंटेंट लिखने के लिए आपके पास एआई टूल्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए आपके पास एआई टूल्स हैं, वीडियो प्रोडक्शन करने के लिए बहुत हद तक क्लिप्स पे आपके पास थीम्स हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपके पास टूल्स हैं. इफ़ यू आर नॉट अ ओरिजिनल थिंकर देन यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. अब ओरिजिनल थिंकिंग आप लाएंगे कहाँ से? व्हेन यू डू राइट सराउंडिंग्स. आप राइट मेंटोर्स के साथ हैं, Okay. आप राइट एग्जीबिशंस में हैं, राइट लोगों से बात कर रहे हैं, डिस्कशन, दैट कम्स फ्रॉम दैट साइड ओनली, नॉट only from the books. Very well said, And sir. your podcast kind of a thing, surrounding plays a role. Surrounding is not only physical but virtual and digital is also a surrounding. तो अगर ये podcast कोई देख रहा है तो उससे उसकी लर्निंग आएगी. True. कोई रील्स देख रहा है, रील से उसकी लर्निंग आएगी. कोई आर्टिकल्स पढ़ रहा है, आर्टिकल से उसकी लर्निंग आएगी. तो सराउंडिंग ये भी है, नॉट ओनली मेंटोर्स. Okay. So we are entering to the next segment, rapid fire. Yep. So you have to answer in one word. One word. Yeah. Okay. So one word to define healthcare PR today. Reputation building. Trust or visibility, what come first? Trust. Print media or digital media? Digital media, new era, but print media kept you as an authenticity wise. You can't miss that. Reputation is built in a years or in a day? It's in years. It cannot be built in a day or time. Thank you so much talking to Medgate Today TV and Mr. Baldev for your sharing such insightful prospects. Healthcare communication is not just PR, it is responsibility, trust and impact, as you said in your conversation. We look forward to seeing Prayas Healthcare Communication continues shaping meaningful narratives in the healthcare ecosystem. Thank you very much for your.